Today we are going to start with new chapter semiconductor. तो semiconductor में हम basic से start करेंगे. Basic मतलब right from part of 11 we will start semiconductor. And then हम जहाँ जहाँ पे required होगा वहाँ वहाँ पे वो concept मैं वापस बता दूँगा. Let's start with first question. At absolute zero, pure silicon behaves as obviously insulator. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद है, तो व्हाट हैपेंस इन सिलिकॉन, लेट्स से ये सिलिकॉन का एटम है, ओके, so you have such silicon atoms in a substance. जब एक सिलिकॉन का सब्सटेंस बनेगा, you have such silicon atoms. ओके, अब ऐसा है कि हर एक सिलिकॉन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन, I mean they have total 4 valence electrons. So silicon के last shell में there are 4 electrons. Okay, so इसका valency 4 है, so this silicon has 4 valency और इनको अपना octet complete करने के लिए they need 4 more. So what happens is, as you can see, I am showing this dots means electrons. These are electrons. So what happens is you have silicon atoms. Each silicon atom has 4 electrons with valence shell. तो ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है. Okay. So as shown here, they have 4 electrons. अब इनको octet complete करने के लिए they need 4 more electrons. So what this silicon atoms do, they share electrons with the nearest neighboring atoms. So एक sharing इसके साथ होगा, तो covalent bond का formation होगा. So there will be formation of covalent bond. यहाँ पे भी sharing होगा, तो covalent bond का formation होगा. Here also is sharing, so covalent bond का formation. यहाँ पे एक sharing होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे होगा. तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो सिलिकॉन एटम ने अपने चारों साइड्स में जो नियरेस्ट नेबर है उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. तो ईच सिलिकॉन एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द नियरेस्ट नेबर. ओके, अब बात ऐसी है कि ये जो शेयरिंग हुआ है, दिस शेयरिंग, electrons are still in the valence shell, मतलब electrons are still in the valence band. आपको याद होना चाहिए band structure क्या होता है. तो as and when required मैं आपको बताऊंगा. You should remember कि normally हम लोग semiconductors की जब बात करते हैं, तो we talk in terms of band theory. Band theory मतलब क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, फॉर एग्जाम्पल, पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम. कब सेम? जब वो एटम आइसोलेटेड है तब. तो फॉर एन आइसोलेटेड एटम एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली द सेम, राइट? बट जब एक मटेरियल बनता है, तो मटेरियल में इन दैट केस हर एक इलेक्ट्रॉन का, इवन दो इट इज इन द सेम ऑर्बिट, एनर्जी सेम नहीं होता, एनर्जी स्लाइटली शिफ्टेड होता है. तो इन सच केस you have slight shift of energy. So because of the slight shift of energy, हर एक electron energy slightly shifted. So because of the slight shift, you get a series of energy, a set of energy. इसको बोलते हैं energy band. तो हर एक orbit में जितने भी electrons होंगे, वो energy band में होंगे. First orbit, second orbit, third orbit, valence orbit, right? So at 0 degree, at absolute 0 Kelvin, मतलब absolute 0 मतलब 0 Kelvin. So at 0 Kelvin, no electron is free for conduction. हर कोई अपने अपने वैलेंस बैंड में है, right? So that is why it behaves as an insulator for number B. Next question. In an intrinsic semiconductor at ordinary temperature, ordinary temperature room temperature,
At an ordinary temperature, the correct relation between number of electrons per unit volume Ne and number of holes per unit volume Ns is. So as I told you, मैंने आपको अभी भी बताया, what happens is, मान लो ये वैलेंस बैंड है, okay, and so this is a valence band. Valence band at 0 Kelvin is completely filled, and मान लो यहाँ पे conduction band है. Conduction band at 0 Kelvin, मतलब at absolute temperature, is completely empty. So valence band completely filled है और conduction band completely empty है. So what happens is, there are no holes, no electrons for conduction, hence it behaves as an insulator. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहाँ पे तो आपको पता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड विल स्टार्ट गोइंग अप. तो यहाँ से यहाँ पे होल का जनरेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड स्टार्ट गोइंग अप टू द कंडक्शन बैंड. जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में जनरेट होंगे. तो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, हमने यहाँ पे जिसमें आपको ये बताया था ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एटम सिलिकॉन का है. तो ईच एटम हियर इज सिलिकॉन, यहाँ पे इम्प्योरिटी हमें डालनी है. तो इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, जितने भी होल्स जनरेट होंगे वैलेंस बैंड में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन per unit volume in conduction band is equal to number of holes per unit volume in valence band. So this is how you get this particular relation. Okay. Next question. When small amount of impurity are added to semiconductor, then generally its resistivity. जब आप इस प्योर सेमीकंडक्टर में, बेस मटेरियल है प्योर सेमीकंडक्टर, so when you put small amount of impurity, okay, तो impurity मतलब क्या, impurity मतलब यहाँ पे आप सिलिकॉन के कुछ एटम्स को किसी और एटम से रिप्लेस कर सकते हो. एटम्स डिपेंड करता है. impurity आप पेंटावैलेंट डाल सकते हो. पेंटावैलेंट impurity में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस शेल. तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पेंटावैलेंट impurity डाला, मैं उसको Pe लिख रहा हूँ फॉर टाइमिंग, because there are many types of pentavalent impurity. Okay, तो उसमें से कोई एक पेंटावैलेंट impurity मतलब उस एटम के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन. ओके, या फिर आप ट्राइवैलेंट impurity भी डालें. तो the process of adding impurity to a semiconductor is called as doping. अब डोपिंग दो टाइप का होता है. एक मतलब impurity का एडिशन दो टाइप का होता है. एक ऐसे एटम आप डालते हो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवैलेंट impurity या फिर एक्सेप्टर impurity. और मटेरियल बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो वो इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक बन जाएगा. और अगर ट्राइवैलेंट impurity डाला है तो वो है पी टाइप. अगर आपने पेंटावैलेंट impurity डाला है, पेंटावैलेंट में क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नेबर के साथ शेयर हो गए, 5वां अनशेयर्ड रह गया, राइट. तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल नहीं है, वो लूजली बाउंड होता है, वो इजीली फ्री होता है. और इस मटेरियल को बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, इजी टू फ्री, इजीली फ्री होता है. तो दैट्स व्हाई व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू सेमीकंडक्टर, then generally its resistivity decreases. So उसका resistivity decrease होगा. So conductivity increases but resistivity decreases. So when a small amount of impurity is added, resistivity decreases. Easy है. Oral question. Next question. In case of PN junction diode, the width of depletion region is.
decreased with heavy doping, increased by reverse biasing, decreased with light doping, increased by forward biasing. देखो ऐसा है, पहले तो बाइसिंग क्या है वो समझ लो, उससे पहले पीएच जंक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। सीडीटी के क्लास में ये अज्यूम होता है कि आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को पता है, तो मैं पीएन जंक्शन डायोड जब बताऊंगा तो थोड़ा क्विक रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एज यू जस्ट सॉ, हम सिलिकॉन का बेस मटेरियल लेते हैं, उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो मैंने एक सिलिकॉन का वेफर ले लिया, फिर हम थिन सिलिकॉन का एक स्लैब ले लिया, शीट ले लिया, क्या बोल सकते हैं, ओके। इसके हाफ पार्ट में मैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी डालूंगा और हाफ में मैं पेंटावेलेंट डालूंगा। तो इसमें मैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी डाल रहा हूँ, वो बन जाएगा पीएच कंडक्टर, और यहाँ बन जाएगा एन टाइप कंडक्टर। एंड एज यू नो, you already know, in case of trivalent impurity, majority charge carriers are holes, positive charge carriers. तो यहाँ पे majority holes होते हैं, positively charged होते हैं ये, and in n-type majority charge carriers are electrons. So you have electrons here in n-type. Okay. Now what happens is, अभी तक मैंने बाइसिंग किया नहीं है, मैंने अभी तक बैटरी कनेक्ट किया नहीं है, इसको बोलते हैं नो बाइसिंग। What happens is, electrons they mutually repel each other. Because of mutual repulsion, अभी ये जो आपका बाउंड्री है जिसने P और N टाइप को सेपरेट किया है, इसको आप बोलते हो P N जंक्शन। ओके, राइट। तो क्या होता है कि जंक्शन के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन they move towards the junction and cross junction. तो negatively charged electrons ये रिपल्शन की वजह से जंक्शन के पास में आए, जंक्शन को क्रॉस कर लिया और पी टाइप में चले गए, और पी टाइप में होल्स थे। एंड यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो विद द हेल्प ऑफ बैंड डायग्राम। आपको बैंड डायग्राम की टर्म्स भी पता होना चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू दैट in case of p-type semiconductor, there are few electrons in the conduction band and there are majority holes here in the valence band. So valence band में बहुत सारे holes हैं. I'm not able to show those holes here, so I do one thing. So there are many holes here in the valence band of p-type, okay, and there are few electrons here in the conduction band of p-type, right? Something similar happens for n-type. तो इतना है कि n-type का जो कंडक्शन बैंड है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and there are only a few holes in the valence band of n-type, right? Now what is happening, electron due to mutual repulsion, और ये structure actually is very near to each other, तो ये बहुत पास में होता है, right? So due to mutual repulsion, few electrons from n-type they will diffuse into p-type, और p-type में as you can see, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, नीचे होल्स है मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो ये होल्स जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन, so there will be recombination of electron and hole, so hole will disappear, okay, hole will disappear। मतलब what is happening, जंक्शन के पास में जो रीजन है n टाइप में, जंक्शन के पास में जो रीजन है
वहां पे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज हो गया और जंक्शन के पास में जो पी टाइप का जो रीजन है उसमें होल्स का शॉर्टेज हो गया। तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस नियर द पीएन जंक्शन, उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। So there is formation of the depletion region here. So यहाँ पे some electrons will diffuse, they combine with holes. There is formation of depletion region. The depletion region means shortage of moving charges, right? Okay. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन n टाइप से चले गए तो वहाँ पे बन गया पॉजिटिव आयन। So there is positive ion. आपको पता है पॉजिटिव आयन क्या होता है? Overall atom is neutral. Number of protons, number of electrons are same. अगर इलेक्ट्रॉन गया वहां से तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे n टाइप के डिप्लीशन रीजन में यू हैव पॉजिटिव आयन्स एंड p टाइप के डिप्लीशन रीजन में यू हैव नेगेटिव आयन्स, राइट? This is what happens. अभी तक हमने बाइसिंग किया नहीं है, तो what is happening? अभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, कब तक इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे? There is a limit, yes. तो देखो जैसे जैसे n टाइप से इलेक्ट्रॉन p टाइप में डिफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आयन्स यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। So when this potential difference is sufficient enough, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव आयन्स आने नहीं देंगे, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल, BB। तो बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा, राइट? मतलब बैंड स्ट्रक्चर के तरह से सोचोगे तो क्या हो रहा है, n टाइप का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हो रहा है, राइट? मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड ऑफ n टाइप से p टाइप में जाना है तो दे हैव टू जंप एंड दे डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू डू सो। ये है अनबायस्ड सिचुएशन। अब जब बायसिंग करते हो तो बायसिंग दो टाइप का होता है, बायसिंग करना होता है बैटरी। तो एक टर्मिनल आप p टाइप से निकालोगे, दूसरा टर्मिनल आप n टाइप से निकालोगे, इसलिए इसको बोलते हैं डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड मतलब देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स फॉर कनेक्शन। तो आपके पास ये आ गया, यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा दूंगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ये बताऊं। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग आप p टाइप को कनेक्ट करते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग नहीं पता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो p टाइप को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और n टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, राइट? फॉरवर्ड बायसिंग, बैटरी का नेगेटिव n टाइप को, बैटरी का पॉजिटिव p टाइप को। तो क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव होल्स ऑलरेडी पॉजिटिव इसको टुवर्ड्स जंक्शन पुश करेगा और बैटरी का नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप को टुवर्ड्स जंक्शन पुश करेगा। और जंक्शन के पास में जो रीजन था जिसको आपने डिप्लीशन रीजन बोला है, वो क्या था, वहां पे शॉर्टेज है किसका, मूविंग चार्जेस का। लेकिन अब क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टर्मिनल इज पुशिंग होल्स, मतलब वो मूविंग चार्जेस को टुवर्ड्स द जंक्शन पुश कर रहा है। इसका मतलब डिप्लीशन रीजन कम होगा। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड वायर्स, in case of forward wires, depletion region decreases, right? Okay, so first of all ऑप्शन ए और सी का तो कोई मतलब ही नहीं और ऑप्शन डी भी गलत है। डिप्लीशन रीजन decreases by forward bias, this is
रियलिटी। ओके, तो ऑप्शन डी भी गलत है, मतलब बचा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको कि रिवर्स बायसिंग में क्या है। इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग व्हाट टू डू इज, रिवर्स बायसिंग में आप बैटरी का नेगेटिव पी टाइप को और बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप को कनेक्ट करते हो। अभी क्या होगा, होल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स negative of the battery and electron will be attracted towards positive of the battery। मतलब जो मूविंग चार्जेस थे वो जंक्शन से और दूर जाने लगे, so the moving charges are going further away from the junction, or the width of depletion will increase under reverse bias। So option number B, in case of using diode, the width of depletion will be increased by reverse bias because moving charges are और दूर लेके जा रहे हैं। मतलब रिवर्स बायसिंग के केस में ये जो एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर है ये आप और नीचे शिफ्ट कर रहे हो और फॉरवर्ड बायसिंग में ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। So this is what it means। I will keep this diagram because we may need this diagram later। So you have to also think in terms of band diagram। So if you start thinking in terms of band diagram, and as we are in the course of CET, which means you will be going for engineering in the future, और engineering के पहले ही ईयर में आपको फिजिक्स में you will need all semiconductor theory again based on band diagrams। Next question, question number 5, with forward bias mode the PN junction diode is one in which width of depletion layer increases। मैंने अभी बताया आपको फॉरवर्ड बायस मोड में, फॉरवर्ड बायस मोड में width of depletion decreases and not increases is the one in which barrier protection increases, acts as a closed switch, acts as an open switch। ओके, तो ऐसा है जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो फॉरवर्ड बायस में आप क्या करते हो, सिर्फ टर्मिनल को उल्टा करते हो। ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, राइट। तो पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो इन केस ऑफ forward bias, you are pushing the electrons and the holes towards the junction। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हो कि ये जो बैरियर पोटेंशियल बना था जो इलेक्ट्रॉन को एन टाइप से पी टाइप में जाने के लिए रोक रहा था, राइट। तो आपने फॉरवर्ड बायस करके इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी दे दिया so that it can cross the junction and enter into p टाइप। मतलब इलेक्ट्रॉन्स will start flowing across the junction, मतलब current will start to across the junction। मतलब PN junction diode in forward bias acts as a closed switch and in reverse bias open switch। closed switch मतलब उसमें की इंसर्ट किया है और करंट फ्लो होगा। तो closed switch मतलब देखो ये कंफ्यूजन होता है। closed switch मतलब आपका जो बटन है वो ऑन है, बटन ऑन मतलब करंट फ्लो होगा, और ओपन स्विच मतलब बटन ऑफ मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो क्लोज स्विच मतलब बटन ऑन प्लस ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। तो इन केस ऑफ बैंड डायग्राम व्हाट हैपेंस इज, जब फॉरवर्ड बायस करते हो तो आप एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर लेके जा रहे हो कंपेयर टू पी टाइप। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्चुअली इजीली गो फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। तो ऐसा होता है। So this is what happens। So option number C is correct। Next question, in an N-type semiconductor, which of the following statement is true? Electrons are majority carriers, N-type में electrons are majority carriers and covalent atoms of dopants no। Electrons are magnetic carriers no। Electrons N-type में majority carriers होते हैं
लेकिन डोपंट तो वो ट्रावेलेंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक कैरियर होते हैं क्या नहीं? होल्स आर मैग्नेटिक कैरियर, yes. In case of n-type semiconductor, there are only a few holes in conduction band. And pental and atoms are dopants, yes. Option number C. That is correct. Option number C. In reverse bias PN junction diode, depletion layer width, अभी मैंने बताया, reverse bias में depletion layer का width जो है वो increase होता है, forward bias में decrease होता है, reverse bias में increase होता है. The depletion layer in a PN junction diode is 10 power minus 6 meter. मतलब depletion layer का width delta x दिया हुआ है मान लो 10 power minus 6 meter. तो जो depletion layer था, I will take this diagram again from there. तो ये जो depletion layer का width है, this width, this distance, this is delta x, that is 10 power minus 6 meter. Okay. Knee voltage is 0.5 volt. इसको delta V बोल रहा हूँ मैं. The inner electric field in the depletion region. तो depletion region में एक अंदर electric field बनेगा from positive ions to negative ions. What is inner electric field? वैसे ये knee voltage क्या है ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं, right? But I'll just tell you very quickly what's knee voltage. मैं बता देता हूँ knee voltage. You have to take into consideration this particular diagram. जो बैंड स्ट्रक्चर है इसका डायग्राम आपको लगेगा. So I will take this and I will tell you what is knee voltage. देखो, if you plot forward bias characteristics of PN junction diode, characteristics in electronics mean graph of voltage and current. तो अगर आपको याद होगा जब हमने कोई बायसिंग नहीं किया, नो बायस, तो n टाइप का कंडक्शन बैंड p टाइप के कंडक्शन बैंड के नीचे था, नो करंट फ्लोस. फिर मैंने फॉरवर्ड बायस किया, पहले मैंने 0.1 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस किया, मतलब मैंने इस बैंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, नो करंट फ्लोस. फिर मैंने 0.2 वोल्ट कर दिया, नो करंट फ्लोस. फिर मैंने 0.3 वोल्ट कर दिया, नो करंट फ्लोस. तो मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास सिलिकॉन है कि नहीं. एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज आएगा, जिसपे n टाइप और p टाइप का कंडक्शन बैंड एग्जैक्टली सेम लेवल पे आ गए, राइट? मतलब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया. अब मैं जैसे ही और वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो n टाइप का कंडक्शन बैंड हायर लेवल पे गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट कमिंग वेरी क्विकली फ्रॉम n टू p, मतलब हाई करंट. तो जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज, और ग्राफ ऐसा दिखता है. So this is knee voltage. Over here is knee voltage. So this is forward bias characteristics of PN junction diode. So anyways, we don't need this in detail. हमको सिर्फ inner electric field पूछा है. आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड is minus delta V by delta X, ऐसा इक्वेशन का नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर आपको याद होगा E is minus dV by dx. Negative potential gradient is electric field. तो आपके पास डेल्टा V है 0.5 वोल्ट, आपके पास डेल्टा X है 10 पावर minus 6, तो ये आ जाएगा आपके पास minus 0.5 into 10 power plus 6, मतलब minus 5 into 10 power 7 वोल्ट पर मीटर, है ना? 0.5 वोल्ट दिया है क्या? 0.5 वोल्ट दिया है, हाँ, तो ये माइनस 5 आएगा, सॉरी प्लस 5 आएगा. 0.5 is 5 to 10 power minus 1. 0.5 is 5 into 10 power minus 1 और 10 power plus 6. तो minus 5 into 10 power 5 वोल्ट पर मीटर is electric field. ऑप्शन नंबर 3. तो नेगेटिव साइन छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मतलब डायरेक्शन
of the electric field is opposite to that of the applied electric field in the form of potential difference. So the direction, negative sign tells you only direction. So this is what you should know. Okay. Next question. The majority carriers of current in a PLS semiconductor will be holes, not protons. Protons में होल होता है. So sometimes you think protons are positive charge, holes are positive charge. So proton hole known to be holes. The p-type semiconductor germanium is doped with p-type semiconductor. देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है. बेस मटेरियल या तो सिलिकॉन होगा या आपके पास जर्मेनियम होगा. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम भी हो सकता है. राइट, सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम के एटम्स भी हो सकते हैं. तो इन दैट केस पी टाइप बनाने के लिए आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंसर्ट करते हो. ओके, ट्राइवेलेंट पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. गैलियम ट्राइवेलेंट है, बोरॉन ट्राइवेलेंट है, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है. तो जर्मेनियम में अगर आपने गैलियम डोप कर दिया, जर्मेनियम में आपने अगर बोरॉन डोप कर दिया, जर्मेनियम अगर आपने एल्यूमिनियम डोप कर दिया, तो ये सारे के सारे चीजें भी बनने वाली है. तो all of this are trivalent impurities. Option number B. The process of adding impurities to the pure semiconductor is called as doping, grouping, doping, none of the above. ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, सीटी में क्वेश्चन 2 है. That time I think during those years CET was introduced. उससे पहले तो CET शायद था भी नहीं, तो लेवल बहुत कम था. Next question, again 2001. The depletion layer in P mentioned is caused by drift of electrons, migration of impurity ions, diffusion of charge carrier, drift of holes. एक चीज याद रखो, ड्रिफ्ट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है या रिवर्स बायसिंग किया, मतलब जब आपने बैटरी कनेक्ट किया है, तो द मोशन ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप और होल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप. ओके, तो मोशन ऑफ charges in presence of a cell, battery or external potential difference is called as drift. Okay. Depletion region, depletion layer in PN junction is caused by, जब depletion layer बना था तब तो हमने biasing ही नहीं किया था. It was no bias. मतलब drift तो बोल नहीं सकते. Migration of impurity ions migrate होते क्या? नहीं. Electrons from n type they diffuse into p type. So diffusion of charge carrier की वजह से depletion layer बनता है. Semiconductor is damaged by strong current due to lack of free electrons, excess of electrons, excess of protons, none of the above. Semiconductor is damaged by strong current due to none of the above. Okay. सेमीकंडक्टर डैमेज कब होता है? ब्रेकडाउन के केस में. ब्रेकडाउन क्या होता है वो हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम टॉपिक करेंगे. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट 11th पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर. दिस इज ऑल फ्रॉम 11th पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर. ओनली थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज complete characteristics of PN junction diode. तो करंट है और वोल्टेज है. ओके, तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN junction diode. मैं आपको ये इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वो जो अपना सेमीकंडक्टर का सर्किट है उसके टर्म्स में बताने वाला हूँ. तो
what happens is I need this diagram, this one, and I need band diagram. So band diagram will not block this one. Okay, so we need to understand what happens in case of forward bias and in case of reverse bias. मैंने फॉरवर्ड बायस तो आपको बता दिया कि पहले तो नो बायस में क्या होता है. नो बायस में conduction band of n type is of lower level compared to conduction band of p type. तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं सकते because they don't have sufficient energy. मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो बैरियर पोटेंशियल है उसको ओवरकम करने जितना एनर्जी नहीं है. तो नो करंट. तो जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा, मतलब एन टाइप को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, पी टाइप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दे रहा हूँ टू गो इनटू द पी टाइप, टू क्रॉस जंक्शन एंड गो इनटू पी टाइप. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप को ऊपर 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 शिफ्ट कर रहा हूँ. तो जब दोनों एन और पी टाइप के कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे आ गए, मतलब इतना वोल्टेज है कि बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो जाएगा. जैसे ही मैंने और फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा दिया, so you get very high current because now electrons from conduction band of n type they can go easily to conduction band of p type. So junction cross करना easy हो जाता है in this case. So you have a high current. So as you see, we had this structure, this kind of characteristics. They have forward characteristics. They have V voltage. This is forward characteristics of the motion diode. Reverse bias में आप क्या कर रहे हो? Reverse bias में आप उल्टा. In case of reverse bias, what you are doing is you are connecting positive terminal of the battery to N type and negative terminal of the battery to the P type. मतलब instead of pushing the electrons towards the junction, आप उल्टा कर रहे हो, आप उल्टा उनको वापस लेके आ रहे हो towards the terminal, मतलब जंक्शन से दूर शिफ्ट कर रहे हो. मतलब बैंड स्ट्रक्चर के टर्म्स में ऐसा हो रहा है that this is going down, down and further down, further down. तो बैंड स्ट्रक्चर के टर्म्स में अगर आप सोचोगे तो एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड हमेशा नीचे रहने वाला है, तो करंट मिलेगा नहीं. तो यू विल नॉट गेट एनी करंट. आपको करंट मिलने वाला नहीं है. डोंट एक्सपेक्ट एनी करंट. ओके, जो थोड़ा बहुत करंट मिलता है वो माइनॉरिटी से मिलता है. दूसरी टाइप का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी फोर्स होते ही है. बट व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो होल्स पॉजिटिव चार्जेस दे आर एक्यूमुलेटिंग एट द पॉजिटिव एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आपने पीडा से कनेक्ट किया था, मतलब पीडा से होल जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटिंग ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी. तो एक से जैसा आ जाएगा कि जो चार्जेस जो एक्यूमुलेट हुए वो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने की, मतलब आपका सेमीकंडक्टर डैमेज हो गया और सडनली वेरी हाई करंट यू हैव, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. So at breakdown voltage you have a very high current all of a sudden. तो ये reverse bias characteristics है of a PN junction diode in the third quadrant, and here we have forward bias characteristics in the first quadrant. So these are complete characteristics of forward of a PN junction diode. So that is all you need to know about
semiconductor from 11th part. Okay, so that's it for today. In the next session, we will be taking semiconductor devices, which is part of 12th standard.